Hi, a very good evening to all of you. Well, in today's class, we'll be discussing the fourth question, which will be relating to the discussion we already had with regard to the classical and the non-classical thinkers. Well, I am Rahul Sharma, Assistant Labour Welfare Commissioner. We are here in order to revise the public administration syllabus as fast as possible and to make you aware about the keywords which are necessarily or essentially to be produced into the examination if you want to score good marks. This lecture is not about content building, or this series is not about content building. You are already aware about the content. You have already studied into your coaching classes. You have already studied it from the book. But right now we are trying to condense our knowledge as much as possible so that it can be replicated well into the examination. Important keywords, they start banging your head the moment you see the question. So this is the sole purpose of this scheme. A lot of people are asking me to make a Telegram group. I've already done that. Apart from that, a lot of people are even asking me for personal guidance. I'm happy to help them. If you can write an answer and send it to me, then I will personally check them and will give you the necessary feedback which is important for you to enrich your answer and to improve upon the number of marks you're getting into that particular answer. So in today's lecture, the question which we are about to discuss is Civil Service Examination 2007 Mains Public Administration Paper 1. And the question is that failure of classical science of administration lies in its inability to confront theory and evidence. We have to comment over it. So important keywords in this question is classical science. Secondly, inability to confront theory with evidence. Now, it is not a very difficult question to answer. So far, whatever we have studied, हमें उसी में से इंफॉर्मेशन निकालनी है और उसको क्वेश्चन की थीम से रिलेट करना है. अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आपने देखा होगा हम घूम फिर के वही कर रहे हैं, बस क्वेश्चन की थीम से उस मेजर फ्रेमवर्क को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर हम इसके आंसर पे जाएं तो ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपको पेपर में कुछ नहीं आता और आपको बस पता है क्लासिकल साइंस जो है ऐसा कुछ होता है और उसके कुछ मेजर फीचर्स पता है. तो उस सिचुएशन के अंदर इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो हम उस पर जाते हैं कि मेजर थीम्स के अंदर ही हम इस आंसर को रिलेट करते हैं क्वेश्चन की थीम से. व्हेन वी टॉक अबाउट classical science, classical school of thinkers, or classical administrative theory, then all of the theories have focused upon one particular aspect, which is universality. They have said that we are trying to identify principles which can universally applicable to each and every form of organization, irrespective of its nature and functions it performs. So they said that these principles are one best way of doing things. इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे साइमन से आया, वाल्डो से आया, जो वाल्डो ने साइमन के ही क्रिटिसिज्म को समहाउ रीटरेट किया है. तो अगर पेपर के अंदर आपको थोड़ा सा इस आंसर को बेटर बनाना है तो हम वहां पे साइमन और वाल्डो जैसे थिंकर्स का नाम डाल सकते हैं. एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि इस बंदे को पता है कि इसके क्रिटिक्स कौन है और इसका क्रिटिसिज्म क्या है. इससे आपके मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो आप ऐसा इमेजिन करो कि एक, मैंने कहा था कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में सास और बहू का रिश्ता है. आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि एक सास ने एक बहू को ये कहा है कि जो प्रिंसिपल्स मैंने बनाए हैं वो दुनिया की हर बहू पे अप्लाई होते हैं और उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी को अटेन किया जा सकता है. बट ये तो नहीं पॉसिबल है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर सेवरल डायनामिक्स व्हिच आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली. सो इफ समबडी इज क्लेमिंग दैट देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देन ही मस्ट हैव हैड enough research done onto the field and there must have been enough sample space to deduce that at least 90% of this theory is successful. But साइमन और वाल्डो का तो क्रिटिसिज्म ये था कि भाई इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है. आप दिखाओ आपने कहां पे स्टडी करी, आपने अफ्रीका में जाके करी, आपने यूनाइटेड स्टेट्स में करी, आपने इंडिया के अंदर करी, और उस स्टडी के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स निकाले और कैसे ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली हर जगह लगाए जा सकते हैं. तो सबसे पहला कि यूनिवर्सैलिटी का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, वो एविडेंस से कन्फ्रंट नहीं कर पाया. तो एज अ रिजल्ट क्लासिकल साइंस का सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर यह था कि इट फेल्ड टू कन्फ्रंट द रियलिटी. अगला वही पॉइंट, स्ट्रक्चरलिज्म. भाई क्लासिकल थिंकर्स ने कहा टेक्नो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथोडोलॉजीज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ टेक्नो मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट ह्यूमन बीइंग्स. इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था. इस चीज को लेटर ऑन प्रूफ किया एल्टन मायो ने, चेस्टर आई बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, इन सबने से रॉन्ग प्रूफ किया. इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के लिए. तो स्ट्रक्चरलिज्म भी कोई साइंटिफिक एविडेंस को मीट नहीं कर पाया ग्राउंड पे. तो ये अगेन एक क्रिटिसिज्म था. हम अगले पॉइंट पे आए, इकोनॉमिक रैशनल मैन. क्लासिकल थिंकर्स ने कहा कि मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द सोल मोटिवेटर ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय.
अगर मैनेजमेंट को एफिशिएंसी या एक बंदे से मैक्सिमम काम निकालना है, अगर एक सास को अपनी बहू से मैक्सिमम काम निकालना है, तो अगर वो रोटी अच्छी बनाए तो 500-500 रुपए उसको देते जाओ ताकि उसका मोटिवेशन बढ़ता जाए, भले ही कितनी गालियां दे लो। बट ये भी पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि मनी इज नॉट दी ओनली मोटिवेशन इन लाइफ। समटाइम मनी इज नॉट मोर देन इमोशंस, समटाइम्स मनी इज नॉट मोर देन रिलेशन। लेटर ऑन हम अब्राहम मैस्लो, मैग्रीगर, हर्जबर्ग जैसे मोटिवेशनल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे रियलाइज करेंगे कि नीड हायरार्की ट्रायंगल है, मोटिवेटर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स हैं। तो मनी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करते हैं। तो जो इकोनॉमिक रैशनल मैन का कंसेप्ट दिया क्लासिकल थिंकर्स ने, वो अगेन साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पाया उसका, क्योंकि लेटर ऑन थिंकर्स ने कहा कि ये तो गलत है, एंड दे हैड बेटर रिसर्चेस, उनके पास बेटर डेटा था, बेटर सैंपल स्पेस था। तो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रैशनल मैन फेल्ड टू कन्फ्रंट द रियलिटी, so there was no evidence in it. As a result, इसको हम साइंटिफिक नहीं कह सकते, क्योंकि साइंटिफिक तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है या को रिलेशन वाली रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा यहां पे। यूनिटी ऑफ कमांड वर्सेस स्पेशलाइजेशन, ये थोड़ा सा यूनिक है। स्पेशलाइजेशन जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप, टेलर ने कहा कि भाई स्पेशलाइज्ड फंक्शनल फोरमैन्स होने चाहिए जो वर्क के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन सेम प्रिंसिपल कन्फ्रंट कर रहा है आपके फेयोल और गली के नर्विक के प्रिंसिपल से कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक इंसान का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक बहू की 5 सास हो जाएंगी, 5 मदर इन लॉज हो जाएंगी, तो कंफ्यूज हो जाएगी किसका ऑर्डर माने किसका ऑर्डर ना माने। इनफैक्ट हो सकता है बहू जो है आपस में सासों को भी लड़वाना शुरू कर दे, एक फैमिलियल पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, एक सियासी जंग शुरू हो जाए घर के अंदर। तो स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल कहता था डिफरेंशिएट करो स्ट्रक्चर को, यूनिटी ऑफ कमांड कहता था उसे इंटीग्रेट करो। तो ये तो दोनों प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है तो ये साइंटिफिक नहीं है, ग्राउंड पे एविडेंस को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनसाइंटिफिक है। तो क्लासिकल साइंस का एक क्लेम कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक है वो गलत साबित हो गया। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन का प्रिंसिपल जो गली के नर्विक ने दिया बेस्ड ऑन 4 P's। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें पर्पस, प्रोसेस, पीपल एंड प्लेस। उसने कहा बस इन 4 P's के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना अगर पता लग गया तो हम कोई भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं, बट इसका कोई एविडेंस नहीं था। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन P's के अलावा भी बनते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स टेम्पररी बनते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स एक ही P पे नहीं 4-5 P का एमलगमेशन करके बनते हैं। तो ये जो उनका कंसेप्ट था डिपार्टमेंटलाइजेशन का, इट फेल्ड ऑन ग्राउंड। हालांकि इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे तो अगेन इट इज अनसाइंटिफिक इन नेचर, कि आपने लिमिटेड स्टडी से क्लेम कर दिया कि इन 4 P के बेसिस पे आप डिपार्टमेंट्स बना लो। भाई कैसे बना लें, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं। तो अगेन उनका जो क्लेम था कि उनके प्रिंसिपल्स जो हैं साइंटिफिक है, इट फेल्ड टू कन्फ्रंट द रियलिटी, इट फेल्ड टू कन्फ्रंट द एविडेंस। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन, टॉप डाउन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉटम अप, इट इज मोर डोमिनेंट देन बॉटम अप। टॉप डाउन कम्युनिकेशन विल ब्रिंग हायर एफिशिएंसी टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टोटली रॉन्ग। अगर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव देखें या प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी देखें, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज गिवन बाय पीटर ड्रकर। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को देखें, हम डेलीगेशन को देखें, डिसेंट्रलाइजेशन को देखें, तो टॉप डाउन कम्युनिकेशन जो है इट विल फेल, हमको बॉटम अप कम्युनिकेशन चाहिए। तो अगेन ये जो उन लोगों का क्लेम था कि टॉप डाउन कम्युनिकेशन इज बेटर देन बॉटम अप कम्युनिकेशन या इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉटम अप कम्युनिकेशन, लेटर ऑन फेल्ड टू कन्फ्रंट द रियलिटी, ये अगेन अनसाइंटिफिक निकला। अथॉरिटी, अगेन कोर्सिव अथॉरिटी इज मोर डोमिनेंट देन कोएक्टिव अथॉरिटी, व्हिच वाज लेटर ऑन प्रूव्ड रॉन्ग बाय मैरी पार्कर फोले इन इट्स डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगेन उन्होंने जो प्रिंसिपल क्लेम करे कि साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, इट फेल्ड टू कन्फ्रंट द रियलिटी, उसका एविडेंस ही नहीं है रियल लाइफ के अंदर। तो आप देखो हमने जो सारे के सारे मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मोटिवेशन, कैरेट एंड स्टिक इज मोर पावरफुल देन इंटरनल मोटिवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। लेटर ऑन आर्गरीज हैज प्रूवन दैट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। इंसान जो सेल्फ मोटिवेटेड है वो ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा बड़ा एसेट है। तो अगेन इट फेल्ड टू कन्फ्रंट द रियलिटी, द साइंस दे वर ट्राइंग टू प्रोपगेट, द साइंस दे वर ट्राइंग टू प्रोपाउंड, द साइंस दे वर ट्राइंग टू प्रोफेस failed miserably, and as a result it could not confront the evidence which is on the ground. So their claim of having universal neutral scientific principles was hollow as per several later on thinkers. अब देखो हमने उन्हीं पॉइंट्स के अंदर से इसके डिफरेंसेस निकाले हैं, उन्हीं पॉइंट्स के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है क्लासिकल साइंस के जो मेजर थीम्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, आपका पावर, इन्हीं थीम्स के अंदर से पॉइंट्स को लाके क्वेश्चन की मेन थीम से रिलेट किया है। और एक दो थिंकर्स के नाम लिख दिए जैसे क्रिस आर्गरीज, मैग्रीगर, मैस्लो, आपके ड्वाइट वाल्डो, हर्बर्ट साइमन, उन्हीं चीजों से रिलेट करके हमने इसका आंसर बनाया। मैंने हालांकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इलैबोरेटेड वे में समझाया है, इसलिए ताकि पेपर में आपको कोई कमी ना लगे, आपको ऐसा ना लगे
कि आपको जो है डेटा की कमी थी। इनफैक्ट आप 150 वर्ड के क्वेश्चन में इतना सारा कंटेंट लिखना आसान नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट in order to produce the same amount of information into that question, that dense information which is required, which is going to fetch you more marks. Lekin for even a layman who doesn't know the theories individually, he'll be able to answer this question if he understands this table which has been repeated a number of times when it comes to discussion of public administration. अब इसका कंक्लूजन कैसे करेंगे? तो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स एविडेंस को नहीं मीट किए। जैसे फेयोल ने कहा कि उसके 14 प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल इन नेचर है, वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल वे में मैनेजर्स यूज कर सकते हैं और इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो है इनके अलावा ये रिजिड है, ऐसा नहीं था। इवन गलिक एंड अर्विक ने भी स्पेस दिया है कि प्रिंसिपल्स जो है वो रिजिड नहीं है, वो प्रिंसिपल्स जो है हमारे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल्स उनके वर्केबल थे, जैसे मेंटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का, आप डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की जो आज भी प्रेवलेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हायरार्की क्रिएट्स ऑर्डरलीनेस इनटू द सिस्टम। स्पिरिट डी कॉर्प्स जो लेटर ऑन आपके पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थिंकर्स ने भी रिटरेट किया है। तो ऐसा नहीं है, तो हम कंक्लूड इस तरीके से करेंगे, डिस्पाइट so many follies and so many weaknesses into their theories, still their theory was very relevant with regard to an emphasis over the techno-mechanical structural aspect of the organization and giving insights into one dimension which was later on completed by human relations school and environmental or modern theory or neoclassical school. And तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करोगे that in spite of its weaknesses, classical theory has several principles which can still be applied into the organization, and all the deficiencies were later on overcome with the introduction of neoclassical school and environmental dynamics. तो बस कंक्लूजन आपको इस तरीके से देना है कि somehow वो क्वेश्चन की एक हॉलिस्टिक या एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे पाए। भाई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं उनका कोई लेना देना ही नहीं था साइंस से। कुछ प्रिंसिपल्स थे जो साइंटिफिक भी थे, कई एस्पेक्ट में जो रूल ऑफ थंब तुक्केबाजी में काम होता था उसको ओवरकम करने के लिए टाइम स्टडी करी गई, वर्क स्टडी करी गई, मोशन स्टडी करी गई, जो लेटर ऑन गैंट चार्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते थे। आज अगर हम देखें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक इंटरनेशनल लेजर बन गया है ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेट पे, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो रखा है कि कोई भी इंसान एक छोटा सा भी चेंज करेगा तो पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होगा। ये क्या एक तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन है। टेलर ने इसी स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी जो भले ही बिटकॉइन के एस्पेक्ट में यूज हो रहा है, गवर्नमेंट इसे बहुत नए नए चीजों के अंदर लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली अ बून फॉर द मैनकाइंड। तो उनके बहुत सारे प्रिंसिपल जैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारे के सारे ऐसा नहीं अनसाइंटिफिक है, लेकिन डिग्री ऑफ साइंटिसिज्म जो है वो वेरी किया और कुछ प्रिंसिपल्स वो फेल्ड टू कन्फ्रंट द रियलिटी हो गया। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी डिस्कसिंग अबाउट सम अदर टॉपिक, आइदर द थ्योरी पार्ट और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम अदर क्वेश्चन। आप अगर इनके मुझे आंसर्स लिख के भेजेंगे, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप ऑन विच वी आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। अगर आप भेजेंगे तो आई कैन इवैल्यूएट देम एंड आई कैन हेल्प यू आउट इनटू इंप्रूविंग योर आंसर्स। We will continue this series. Thank you so much.